डॉक्टर आदर्श हार्ट एंड सुपर स्पैशलिटी हॉस्पिटल जो कि नेड़े रतन सिंह चौक सर्कुलर रोड ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਆਦਰਸ਼ ਜੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵਰਨ ਮੋਹਨ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਪਲੱਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਆਦਰਸ਼ ਹਾਰਟ ਐਂਡ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਆਓ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ ਤੇ। प्लस प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਦਰਸ਼ ਹਸਪੀਟਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਾਰਟ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਔਰ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਸਪੀਟਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹਾਰਟ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਔਰ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਦੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਵੀਂ ਐਨਰਜੀ, ਨਵੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ੋਅ 'ਚ। ਡਾਕਟਰ ਆਦਰਸ਼ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਤਾਓ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾਰਟ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੰਪਟਮਸ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਫੇਸ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਾਰਟ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਟੌਪ ਕਲਾਸ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ MD ਮੈਡੀਸਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਸਟੈਥੋਸਕੋਪ, ECG, ਬਸ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਟ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਦਿਮਾਗ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ 90% ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਹਾਰਟ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ECG ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਸੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਰਟ ਦੀਆਂ ਬਲੱਡ ਦੇ ਟੈਸਟ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਰਨਰੀ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਈਕੋਕਾਰਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਖਰ ਨਾਲ ਦੇ ਔਰ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ TMT ਮਸ਼ੀਨ ਔਰ ਈਕੋਕਾਰਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਮਸ਼ੀਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਉਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹਾਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਜਲੰਧਰ ਵੀ ਹੋਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਅਰਲੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਡਾਕਟਰ ਵਰਨ ਮੋਹਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਹੈ, ਐਡਵਾਂਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਵਰਨ ਮੋਹਨ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘੇ ਤਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਵਰਨ ਮੋਹਨ ਨੇ ਜੋ ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੀਕਸ, ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੋਰਨਰੀ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵਿੱਚ, ਸਟੈਂਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਪੇਸਮੇਕਰ ਇੰਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਔਰ ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨਾਲ ਈਵਨ ਦਿਲ ਦੇ ਵਾਲਵ ਔਰ ਦਿਲ ਦੇ ਛੇਦ ਬਿਨਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਔਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਵਰਨ ਮੋਹਨ ਔਰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਂਟਿੰਗ ਦੀ ਔਰ ਪੇਸਮੇਕਰ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਥ ਰੇਟ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ 0 ਰੇਟ 'ਤੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਔਰ ਲੇਟੈਸਟ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਫਖਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਮਦਦਗਾਰ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਐਜ਼ ਏ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜੇ ਹਾਰਟ ਦੀ ਅਟੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਥ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰੀਬ 15 ਤੋਂ 16% ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਥ ਰੇਟ ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਟੈਸਟ ਮਸ਼ੀਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 8% ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਆਲਮੋਸਟ ਅੱਧਾ ਹਾਰਟ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਟੈਕ ਦਾ ਡੈਥ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੱਸਾਂ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ
ਤਾਕਤ ਬਣ ਕੇ ਖੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹੇ ਔਰ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹਾਰਟ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? देखो पिछले 5-6 महीने बहुत ही ज़्यादा साढ़े लिए कह लो चैलेंजिंग सीगे, क्योंकि हार्ट अटैक तो नहीं कोरोना के अटैक्स करके बंद होए, ना हाइपरटेंशन बंद हुई, ना डायबिटीज़ बंद हुई, ना ब्रेन के स्ट्रोक के अटैक पैरालिसिस वगैरह बंद हुए। सो साढ़े लिए ये काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग सीगा कि कोरोना के बावजूद भी असी ये जिहड़े पेशेंट्स है इन्हों रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। जे असी ये करते हैं तो असी अपने प्रोफैशन की जिहड़ी जिम्मेवारी है उहदे तो असी हटते हैं। सो असी सोचा कि मतलब कोरोना वाले केसेस में असी स्क्रीनिंग करांगे प्रॉपरली, बाहर असी सैनिटाइजर लगाए, टैंपरेचर देखने लिए एक स्पैशल बंदा रखा, बाहर ही पहला प्रॉपर जी है ऑक्सीजन सैचुरेशन जी है पल्स ऑक्सीमीटर नाल देखते हैं वो देखते सीगे, जिन्ने एहतियात बरत सकते सीगे, प्लस रेगुलर फॉगिंग करनी, डेली फॉगिंग करनी, और अपने स्टाफ में प्रॉपर गाइडेंस देनी, मास्क रखना, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी, ये चीज़ां दे गाइडलाइन दे देन दे करके असी अपना हार्ट का जिहड़ा हॉस्पिटल है ये कोरोना की जो मैक्सिमम इंसीडेंस सी उदों भी बंद नहीं किया, क्योंकि सारे हार्ट अटैक के पेशेंट जिहड़े है जे असी ये रिफ्यूज़ कर देंगे फिर वो कित्थे जाएंगे, फिर तो वो बेचारे आते थे जे असी उन्होंने मना कर दिए बाहरों भेज दे भाई असी दाखिल नहीं करना, असी सोचते सी ये भी असी जिम्मेवारी तो परे हट रहे हैं और एक तरह नाल पाप करते हैं। सो पिछले 6 महीने चैलेंजिंग जरूर रहे हैं। हार्ट अटैक के पेशेंट पहले नालों घट आते थे, वो भी मरीज डरते आते थे, लेकिन ये जरूर है कि हार्ट अटैक के पेशेंट्स, हाइपरटेंशन के पेशेंट्स, डायबिटीज़ के पेशेंट्स, स्ट्रोक के पेशेंट्स जिहड़े है जिन्होंने पैरालिसिस आपां कहने हैं वो असी रिफ्यूज़ नहीं किए। हाँ उन्होंने लिए ट्रीटमेंट लिए जो मैक्सिमम प्रिकॉशनस एहतियात वरते जा सकते हैं वो असी वरते रहे हैं। हाँ जिहड़ा केस कोरोना पॉजिटिव आंदा सी वो असी जरूर बाहर रैफर जिथे कोरोना के सेंटर्स ने उत्थे रैफर कर देंगे सीगे, लेकिन ये जरूर है कैश लैब के विच बाकी जगह विच भी हुण असी पिछले 2-3 महीने तो ये इंपैरेटिव करता, जरूरी करता कि जिहड़ा भी पेशेंट एंजियोग्राफी लिए, स्टेंटिंग लिए आएगा, ऑपरेशंस लिए आएगा, हार्ट की पेसमेकर का ऑपरेशन है या बाईपास सर्जरी का ऑपरेशन है, उन्होंने पहला असी कोरोना टेस्ट करवा के फिर ही असी इस प्रोसीजर जोड़े है करते हैं। ये प्रिकॉशन जरूर लेंदे हुए असी पिछले 6 महीने भावें चैलेंजिंग टाइम रहा, लेकिन अपने हॉस्पिटल जो भी गरीब मरीजों की और जो भी लोड़वंद मरीजों की सेवा कर सकते सी वो करने की कोशिश जरूर की है। बाकी ये कितना कामयाब हुए हैं ये असी आम पब्लिक और तुहाडे वर्गे भरावां ते छड्ड दिंदे हैं। ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਸਟੰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਨੇ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਵੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪ੍ਰੈਫਰ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਰਜਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਸਟੰਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਜਾਂਦੇ। बड़ा ज़रूरी सवाल भी है और इन्हों डिस्कस करना भी बहुत ज़रूरी है। पहली गल तो यह है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट गल जी दसन वाली है कि सारे हार्ट अटैक के पेशेंट जोड़े है उन्होंने स्टेंटिंग या बाईपास सर्जरी की जरूरत नहीं होती। जो स्टेंटिंग बाईपास सर्जरी नहीं सी होंदी उदों भी ये नहीं सी कि हार्ट अटैक के सारे मरीज बच जाते सी, मर जाते सीगे, उदों भी 80% मरीज बचते ही सीगे। सो असी ये पब्लिक ਨੂੰ ਵੀ ਕਨਵੇ करना चाहते हैं थ्रू ਤੁਹਾਡੇ थ्रू भी बाकी आम होर दूसरे मीडिया के थ्रू भी कि ये एक सोचना कि हर एक हार्ट अटैक का पेशेंट, हार्ट का पेशेंट उन्होंने स्टेंटिंग, एंजियोग्राफी होर चीज़ों की लोड़ है, ऐसी कोई गल नहीं है। हाले भी जो 80% केसेस हैं वो मेडिसिन के नाल ही ठीक हो सकते हैं। बड़ा जरूरी जी गल दसन वाली गल है कि भावें जड़ियाँ हार्ट के तीनों नाड़ियाँ ब्लॉक होन, लेकिन जे ब्लॉकेज 70 तो 80% तो घट है तो ये वाले पेशेंट जोड़े है ये मैडिकल ट्रीटमेंट नाल ही ठीक किए जा सकते हैं। 70% तो उपर जोड़े पेशेंट्स है उन्होंने फिर असी डॉक्टर वरुण मोहन असी अपने इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट को सौंप दें एंजियोग्राफी, स्टेंटिंग वास्ते, पेसमेकर वास्ते,
ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਲੋਕੇਜ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਨਾੜੀਆਂ ਬਲੌਕ ਵੀ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈਕੇਡਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਦੱਸਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਿਮਾਰਕੇਟ ਕਰਨਾ, ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟੈਂਟਿੰਗ, ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਮਾਈਲਡ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਵੀਅਰ ਪੇਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਔਰ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਬਲੋਕੇਜ 70% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਓਪਨਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੈਂਟਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਂਦਾ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਡਾਈਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਰੈਗੂਲਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਨੀ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮਤਲਬ ਸਟ੍ਰੈਸ ਐਂਡ ਸਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈ 90% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਐਸਾ ਆਦਰਸ਼ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਸ਼ੁਰੂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹਾਰਟ ਦੀ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਹਸਪੀਟਲ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਪਬਲਿਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ, ਨਿਊਰੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਹੈਪੇਟੋਲੋਜੀ ਹੈ, यूरोलॉजी है, कार्डिक सर्जरी है, जनरल सर्जरी है, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है, न्यूरो सर्जरी है, ये सारियां ही ब्रांचेस दी जड़ी सुपर स्पेशलिटीज़ हैं वो साढ़े हॉस्पिटल च अवेलेबल हैं और जो जड़े सब तो माहिर और सब तो ज़्यादा प्रोमीनेंट मशहूर डॉक्टर इन्हां सुपर स्पेशलिटीज़ ने उन्हां दी सर्विस जड़ियां वो असी अवेल कर रहे हैं। इस तो इलावा असी सब तो ज़्यादा जड़ा है प्रिवेंशन ते जिद्दां तुसीं आपे क्या जोर दिंदे हैं, असी रेगुलर कैंप लगा के रेगुलर फ्री मेडिकल एजुकेशन दे मतलब तकनीक्स दे नाल लोगों को अवेयर करना चाहते हैं हार्ट की डिजीज़ भी रोकने वास्ते, प्लस बाकी दी जड़ियाँ बीमारियां हैं उन्होंने तो बचाव किस तरह रखा जा सकता है, कैंसर तो बचाव कितना रखा जा सकता है, किस तरह अपना लाइफ स्टाइल और डाइट कंट्रोल करिए जिसदे नाल ये बीमारियां सानू छू तक ना सकन, किस तरह योगा जिहड़ा है वो मदद कर सकता है, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी मदद कर सकती है। ये चीज़ों में असी अजकल उन्ना ही हाईलाइट करते हैं जिन्ना ट्रीटमेंट में हाईलाइट करते हैं। डॉक्टर साहब ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਵਰਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਟੈਲੀਕਾਸਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। हॉस्पिटल जो कि कॉम्बिनेशन है नया और पुराना, जिसमें डॉक्टर साहब का लंबा तजर्बा और आपकी नई नई जो इन्वेंशंस है जो आपने यहाँ सीख कर आए हैं और आपने अपनी सेवाएं दी है, क्या कहना चाहेंगे कि कैसा हॉस्पिटल जो सारे अमृतसर में एक सेवाएं जो है अपनी पिछले लंबे समय से बहुत 30 साल से ये सेवाएं दे रहा है, क्या कहेंगे? पहली बात थैंक यू सो मच, आप अपने चैनल पे हमारी इंटरव्यू कर रहे हैं। हमारा हॉस्पिटल डॉक्टर आदर्श हार्ट एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो कि रतन सिंह चौक सर्कुलर रोड अमृतसर पे है, ये हार्ट की सारी सुविधाएं प्रदान कर रहा है और बड़े अफोर्डेबल रेट्स पे प्रदान कर रहा है। हर तरह के नॉन इन्वेजिव और इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी के प्रोसीजर्स यहाँ पे हो रहे हैं और बाकी जो प्रिवेंटिव कार्डिक वर्कअप चेकअप्स ये सब हो रहे हैं। इसके अलावा हार्ट के अलावा बाकी सारी स्पेशलिटीज़ का भी यहाँ फैसिलिटीज़ अवेलेबल है।
जैसा अगर हम हार्ट की बात करें, कोई ज़माना था कि जब किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती थी तो सारा जो है परिवार है जो उसमें एक पैनिक हो जाता था, लेकिन आजकल बड़ा सिंपलिसिटी से लोग ले रहे हैं और हार्ट वाला जो जैसे जैसे मशीनरी नहीं आ रही है, अब डॉक्टर्स ने नए नए इन्वेंशंस की है, तो अब हार्ट का जो डेथ रेट है उसको बहुत कम कर दिया। डेफिनेटली मोर्टेलिटी जो कार्डियक डिजीजेस की वजह से है वो तो काफ़ी डिक्लाइन की हैं, मेनली बिकॉज ऑफ गुड केयर एंड एडवांस्ड इंटरवेंशंस इन कार्डियोलॉजी। तो नो डाउट बिकॉज ऑफ द एडवांस टेक्निक्स मोर्टेलिटी काफ़ी कम है। और जैसा अगर हम बात करें कि जैसे गोल्डन पीरियड की बात करें तो लोग हैं जो वो कई बार वो गोल्डन पीरियड जो हार्ट अटैक के दौरान है उसको खो लेते हैं और अपने टोटकों में लग जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप एज ए डॉक्टर की, जब भी आपको एंजाइटी हो या हार्ट के आपको लक्षण लगे तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले जो कार्डियक सिम्टम्स होते हैं जैसे कि छाती में दर्द, सांस फूलना या हार्ट रेट बहुत तेज़ हो जाना, इन सबको लाइटली नहीं लेना चाहिए और हमेशा एक स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। इधर उधर जो RMPs, इधर उधर छोटे डॉक्टर्स उधर ना भटकते रहें लोग, तो एक प्रॉपर स्पेशलिस्ट को दिखाया जाए। सबसे पहले जो हार्ट अटैक है वो इवन ECG पे ही डायग्नोज हो जाता है और उस हिसाब से हम ट्रीटमेंट अगर टाइम पे शुरू कर दें तो काफ़ी मोर्टेलिटी में कमी हो जाती है। तो मैं तो यही कहूँगा लोगों को कि कोई भी कार्डियक सिम्टम्स को लाइटली ना लें और जो अपने नियरेस्ट स्पेशलिस्ट है उसको ज़रूर दिखाया जाए। सर, स्टंटिंग की जहाँ तक बात है, आजकल ये एक सिंपल प्रोसीजर बन चुका है स्टंटिंग का भी, और एंजियोग्राफी है जो वो भी एक बहुत ही मतलब वो वाली बातें नहीं रही पहले वाली। आजकल लोग जाते जाते ऑपरेशन करा जाते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? नो डाउट एंजियोग्राफी एक बेसिक मोडेलिटी है जो कि करने में हार्डली 5 मिनट भी नहीं लगते और इन केस किसी को स्टेंटिंग की रिक्वायरमेंट है, आजकल सारे एडवांस्ड और लेटेस्ट स्टेंट्स हैं जिनमें कॉम्प्लिकेशन रेट्स बहुत ही कम हैं और करने में भी इजी हैं, तो नो डाउट डेफिनेटली एडवांस टेक्निक्स की वजह से अब ये इंटरवेंशन करना आसान हो गया है। डॉक्टर साहब, आदर्श हॉस्पिटल जिसने पहले भी यहाँ आपकी पुरानी बिल्डिंग थी वहाँ पर भी और अब नया जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खुला है उसमें हालांकि हॉस्पिटल नया है लेकिन वही डॉक्टर साहब का अंदाज और वही आप दोनों की आपने जैसे अपने फादर को फॉलो कर रहे हैं, जैसे उनका इलाके में गाँव में जो प्यार बनाया हुआ था डॉक्टर साहब का कि कोई बात नहीं है, पैसे की कोई बात नहीं है, वही ढंग है जो यहाँ चल रहा है डेफिनेटली। और आप अपने फादर को फॉलो कर रहे हैं और आपने ये बहुत बड़ी बात है कि आप दिल्ली से पढ़कर और अमृतसर भी आपने चूज किया, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? डेफिनेटली बाहर से ट्रेनिंग ली है और अब इस एरिया को फुल सर्विसेज देने का हमारा प्लान है। ऐसा कितना का मजा आता है जब फादर के आकर लोग फादर से की एज के कई लोग ज़्यादा आकर भी पैरी हाथ लगाते हैं, तो आपको कैसे मजा आता है कि मेरे फादर ने जो अंपायर बनाया है, जो उसने मेहनत की है हार्ट के फील्ड में, और उनको तो मेरा ख्याल है सिम्टम्स वैसे ही जब भी वो जब ये ECG वगैरह ये जो मशीनें हैं नहीं आई थी तो डॉक्टर साहब तो पहले की सिम्टम्स उनको वो एक्सपीरियंस भी आप साथ में यूज करें? नहीं, उनका ऊपर हमारे हाथ ज़रूर है, सारे गाइड करते रहते हैं हमें, तो डेफिनेटली उनका तो आशीर्वाद और गाइडेंस तो हमेशा साथ रहेगी। डॉक्टर साहब, इस हॉस्पिटल में क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है पेशेंट्स के लिए? यहाँ पे हर तरह की कार्डियक फैसिलिटी सारी अवेलेबल है, बाकी हर तरह की सर्जरीज, ऑर्थो, जनरल सर्जरीज, गायनी सर्जरीज और ये सब अवेलेबल हैं, और जो बाकी स्पेशलिटीज़ हैं लाइक गैस्ट्रो, न्यूरोलॉजी, ये भी सारी अवेलेबल है। और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ अपनी लैब है और इकोकार्डियोग्राफी की बात करें, TMT की बात करें तो सारा यहाँ उपलब्ध। हाँ, सारे नॉन इन्वेजिव, इन्वेजिव सब अवेलेबल है, जो कार्डियोलॉजी के रिलेटेड सब कुछ अवेलेबल है। और ICU की बात करें, वेंटिलेटर की बात करें, 24 आवर सर्विसेज की बात करें, क्योंकि हार्ट के जो पेशेंट है वो टाइम तो कुछ है नहीं, रात को हो गया और आप लोग 2 डॉक्टर होने के कारण कोई ना कोई मतलब जो है आप का डॉक्टर है, जब कोई ज़्यादा इमरजेंसी आ जाती है तो यहाँ हाजिर रहती है। या 24 आवर्स अवेलेबिलिटी हमेशा यहाँ पे अवेलेबल है, कोई भी कार्डियक पेशेंट कभी भी अनअटेंडेड यहाँ से नहीं जाता। डॉक्टर साहब, क्या मैसेज रहेगा? जैसे आजकल जंक फूड्स हो गए हैं और बच्चों का जो सीडेटिव लाइफस्टाइल है, तो आने वाले समय में जैसे ये पहले हार्ट की जो प्रॉब्लम है वो आगे जाकर बढ़ती थी, कहते 50 वाला काम, क्या लग रहा है आपको कि आज के समय में, तो मेरा ख्याल है कि आने वाले समय में ये बहुत ही एज भी इसकी भी कम हो जाएगी?
डेफिनेटली अब कोई हार्ट डिजीज कोई एज नहीं रही। पहले हम सुनते थे कि ओल्ड एज में ये प्रॉब्लम्स होती हैं, बट आजकल इवन एज यंग एज 20 इयर्स में हम देखते हैं हार्ट अटैक्स की प्रॉब्लम हो रही है। मेनली इसका कारण एनवायरमेंटल कॉजेज बहुत हैं, फिर डाइटरी कॉजेज बहुत हैं। आजकल खाने पीने का जो यंग यूथ में जंक फूड की आदतें ये सब कंट्रीब्यूट करती हैं। देन इसके अलावा कुछ हेरिडिटरी फैक्टर्स भी होते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि सबसे पहले तो अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जो बेसिक अपनी ईटिंग हैबिट्स, एक्सरसाइज, ये डेली फॉलो करना चाहिए प्रॉपरली। थैंक यू।